status of 100% solar-powered port, and annual CO2 emissions saved will be 3,807 tons. Annually, 45T reiterates its commitment towards protecting and conserving nature and our environment. 3 megawatt peak solar photovoltaic grid-connected power plant. When 3 projects with financial outlay of about 300 crores came to be dedicated today. One facet of Narendra Modi government is they dedicate, which means they complete fast. The Prime Minister's passion for development is his mission, and he believes in fast execution. And execution of a scale. Ladies and gentlemen, these 3 projects dedicated today are defining the changing profile of Bharat. 3 megawatt solar power plant. You will be pleased to know, International Solar Alliance headquarters is in India. A decade ago, we hardly had presence of solar power. Now it is dotting our landscape everywhere. We are very big at a global level in solar power. It's a clean energy, renewable energy, clean energy. मुख्यमंत्री जी, आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपका जो एनवायरमेंट है, pristine, empty, I would say paradise for tourists. आपको इसकी बहुत आवश्यकता है और काम भी हो रहा है. I can see tear on his face. Commercial operation of 2 harbor mobile cranes, we saw them, the big ones, at bus 10 and 11. This also indicates that our ports are getting modernized. We are keeping pace with technology. We are determined to be world leaders. And therefore technological penetration, swift handling, eco-friendly handling is fundamental to ports. And the third one is very significant. Covered dome for coal handling. One, it's a project indicating public-private partnership. One of the leading corporates, JSW, has done it. And what I saw on the screen, it's a remarkable technological masterpiece. But there has to be covered coal handling if we have to protect our environment. This is need of the hour. I am so glad that this great initiative has been taken in concert with one of the leading corporates, the JSW. It is a matter of great pride for me to be at Mormugao Port, one of the oldest, most strategic maritime gateway, and amongst nations top 10 in the state of Goa. Nations top 10. Mormugao Port embodies India's maritime legacy, dating back to Indus Valley civilization, and reminds us of something very unique for which Goa and Goans can take pride. Goans seafaring traditions. These traditions are the envy of the world and a great attraction to the tourists. Honorable Chief Minister, I vividly recollect your skill of management. When I was here last November, 37th National Games, spectacular show, well managed, and there was full exhibition of the strength and the spirit of our athletes. Just imagine in a country of 1.4 billion,
in a state like Goa, very important, but demographically, less than 1 million, less than 2 million. Gigantic coastal hill. I was thrilled by management. Congratulations to you. And now there is a special occasion. For 3 years as Governor State of West Bengal, Namtu Thakur will hear me out. I stayed at prone to cyclones. Super cyclones. I saw the dedication, purpose, commitment to the I have come here to salute your courage and conviction. I was witness to your unwavering resolve as maritime sentinels. You are doing a wonderful job. When I see this shield, impregnable shield, a shield that fills us with pride, those who embody the motto and live up to the motto, vindicate the motto, 24/7, Vayam Raksham, we protect, safeguarding not only our shores, but also national interests. Dear Coast Guards, I know your life is not easy. You face daunting challenges in difficult situations. The risks are many, but your commitment and dedication to duty ensures in times of crisis there is no mortality on high seas. In West Bengal we had 0 mortality on high seas. And cyclones were very severe thanks to your tribe, your uniform. And then recognition sometimes comes late. सर गोवा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत आहे. गोंयांत हांव तुमचो येवकार करता. हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन तुमकां हांगासर आपोवणे दिता. सगळ्यांनी नेटान ताळयो वाजून सरांचें खूब खूब स्वागत करचें. सर मार्मागोवा पोर्ट ये तो बहुत ही मरीटाइम हेरिटेज का पोर्ट है. यहाँ पे वास्को सिटी है जहाँ पे पोर्ट, रेल, रोड और एयरपोर्ट सभी कनेक्टिविटी सिंस फ्रॉम द लिबरेशन ऑफ द गोवा यहाँ पे अवेलेबल है. दिस इज़ अ हिस्टोरिक सिटी ऑफ द गोवा जो हमेशा के लिए गोवा के इकोनॉमिक में उन्होंने हमेशा के लिए भर दिया है. और ये दिस इज़ एन फर्स्ट सिटी विच हैविंग कनेक्टेड विथ ऑल दिस 4. इसीलिए आज इस इम्पोर्टेंट सिटी में आप यहाँ पे आए हैं. गोवा सरकार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप जो 3 प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन कर रहे हैं इसमें हम जो फर्स्ट विच इज सोलर पावर प्लांट विच इज एन जनरेट्स 4.5 million of the unit which is a clean energy annually which reduce the carbon emission 3,800 tons per year and which will meet the 100% port electricity requirement वो कंप्लीट करेंगे. इसलिए मैं पोर्ट मैनेजमेंट और उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ कि फर्स्ट ग्रीन पोर्ट स्टेटस इस मैरीटाइम इंडिया डिवीजन में 2030 दे विल अचीव. इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन. माननीय मोदी जी की लीडरशिप में माननीय सोनोवाल जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सो दैट ही हैड अचीव्ड द ग्रीन इनिशिएटिव्स इन दिस पोर्ट. अगेन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कार्गो हैंडलिंग वो भी प्रोजेक्ट आज आप इनॉग्रेशन कर रहे हैं. और द थर्ड वन इज द सस्टेनेबल कोल हैंडलिंग कवर्ड डोम फैसिलिटीज़. सालों से हमारी डिमांड थी कि यहाँ पे जो कोल हैंडलिंग ओपनली हो रहा था वो कोल हैंडलिंग यानी उसको डोम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. यानी बार बार यहाँ पे बाजू में जो लोग रहते थे कोल की जो पोल्यूशन होता था उस पोल्यूशन से बचने के लिए दिस डोम फैसिलिटीज़ विल प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल. नाउ हमेशा के लिए कोल का पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा. इसलिए यानी द SWPL मीन्स द JSW इंफ्रा इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ क्योंकि लोगों की डिमांड सुन के आपने डोम फैसिलिटीज़ अवेलेबल यहाँ पे की है. तो हमेशा के लिए गोवा दिस विल बी वन ऑफ द ग्रेटर स्टेप इन द कोल हैंडलिंग. तो आपका
भी बहुत बहुत अभिनंदन। गोवा के और वास्को की जनता की तरफ से आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दिस इज इक्विप्ड विद द एडवांस डस्ट सप्रेशन एंड फायर सेफ्टी सिस्टम। इट विल द लार्जेस्ट इट्स काइंड ऑफ इन गोवा। द फर्स्ट टाइम इट्स टाइप की फैसिलिटीज़ मुझे लगता है किसी पोर्ट पे अवेलेबल हो रही है, तो फिर एमपीटी के लिए और आपका भी मैं इस पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एडिजन ग्रीन मैरीटाइम लॉन्च करते हुए हरिश्री स्कीम जो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, इसके लिए मार्मागोआ पोर्ट विल बी द इंडियाज फर्स्ट पोर्ट इन इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन शिप इनिशिएटिव्स पूरे देश में होगा। इसीलिए विच विल बी द एशिया का लीडिंग ग्रीन पोर्ट एमपीटी पोर्ट कहलाते जाएगा। इसलिए मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमेशा के लिए कार्बन इमिशन की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, यानी ग्रीन एनर्जी सभी चीज़ में आनी चाहिए। तो पोर्ट मुझे लगता है पूरे भारत भर में ग्रीन इनिशिएटिव सबसे पहले मार्मागोआ पोर्ट पे लिया है, विच क्रेडिट कम्स टू द मार्मागोआ पोर्ट एंड अगेंस्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ गोवा। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर, डबल इंजन सरकार की तरफ से हमेशा के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी टू द नेशनल हाईवे विच इज अप्रॉक्सीमेटली 4 लेनिंग ऑफ द NH66 विच इम्प्रूव द कार्गो कैरिंग। वास्को सिटी में पूरा कंजेशन होता था, उसका पूरा कंजेशन खत्म हुआ और कार्गो कैरिंग डायरेक्टली पोर्ट टू द नेशनल हाईवे, पोर्ट टू द रेल एंड द पोर्ट टू द एयरपोर्ट। इस तरह की फैसिलिटीज़ गोवा में डबल इंजन सरकार के यही उपलब्ध हो सके। कंजेशन पोल्यूशन कम करने में हम आगे रहे, इसीलिए मैं केंद्र सरकार का भी बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। मल्टी मोडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ विच इज़ अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा। मैं जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि विकसित भारत 2047 का विजन कंप्लीट करते हुए हमेशा के लिए माननीय मोदी जी ने एडवांस में अचीवमेंट में इनोवेशन टेक्नोलॉजी इसके बारे में सोचा है और वही एडवांसमेंट इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हर तरह के वे में यूज़ किए हैं। तो इससे आगे मार्मागोआ पोर्ट जब प्राइवेटाइजेशन करते हुए भी हमारे यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन हैं उनका बिजनेस कंसिडर करेगा, क्योंकि स्टेट मिनिस्टर आज यहाँ पे खास करके हैं। हम यहाँ के ढेर सारे लोग इसी पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो प्राइवेटाइजेशन होते हुए भी यहाँ के लोगों का बिजनेस न जाए, यहाँ के लोगों को काम हमेशा के लिए मिले, यही हमारी गोवा सरकार की तरफ से मांग है। क्योंकि जब जब प्राइवेटाइजेशन होता है तब कभी कभी जॉब लॉस और यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट लॉस हो सकते हैं, लेकिन स्टेट मिनिस्टर यहाँ है और ख़ास करके माननीय उपराष्ट्रपति यहाँ है, तो माननीय मिनिस्टर जी को और बताएंगे और हमारे लोगों का ध्यान रखेंगे। यही मैं बात रखते हुए फिर एक बार आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।